Good morning, everyone. Today we are going to learn chapter number 11 from grade 7 science, and the name of the chapter is Transportation in Animals and Plants. Already we are going to complete 10 chapters before Diwali vacation. Now it's time to complete the remaining portion, and we are starting from chapter number 11, and the name is Transportation in Animals and Plants. This chapter is divided in 3 or 4 parts. So we have to learn one by one each part, and we have to understand the whole lesson. So the first portion, what does the title of the chapter means? So the title is Transportation in Animals and Plants. That means how the things are transported throughout the animal body and throughout the plant body that we have to learn. So first of all, there are so many systems included in this topic. So the first system, that is circulatory system. So what is circulatory system? So the circulatory system is a transport system in a human body which consists of a network of blood vessels that supplies food, water, oxygen throughout the body and removes waste product from the body. कि circulatory system होती क्या है? So this is that one is a type of system which helps to transport. Either it transport food also, it transport water also, it transport oxygen also, and it take out carbon dioxide also. So this one is a system which helping in a circulation of the things in our body. Now what are the main parts of this system? So the main part of the circulatory system are blood vessels and heart. Then these three things are the main portions of the system, that is blood, then blood vessels and heart. These are the main three parts. Then components of blood. Which are the components are there in blood? सबने blood देखा होगा, right? You all know that how blood looks like. That is red in color. Then but that red color, that red liquid includes so many things in them, and that is red blood cells, white blood cells, plasma, platelets, blood vessels. These are the thing which is in blood. आपने सिर्फ ब्लड ही देखा होगा, सिर्फ रेड कलर का लिक्विड आपको दिखता है, बस उस रेड कलर के लिक्विड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है. देन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, वो एक वेन है, वेन के अंदर ये ब्लड है. जब ब्लड को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपको ये सारी चीजें दिखती है. देन नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है. सो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, platelets and plasma. These are the thing which is in the blood. RBC, that is a short form of red blood cell. Then what is the full form of RBC? Again I'll repeat, red blood cell. At the same way, WBC, W stands for white, so WBC stands for white blood cell. Then after that, plasma is there in blood, and then platelets is there in blood. So if anyone asks you that how many components are there in blood, so you can easily say that there are 4 components in blood, and that is red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. Then so these are the components of blood. Then now we have to learn by define what is blood. So blood transport substance in a body. कि blood क्या काम करता है? Blood is a main functioning unit to transport any of the material in your body. Now it has a fluid part called plasma and cells like red blood cells, white blood cells and platelets. ये जो blood है, blood के अंदर भी जो liquid वाला portion है, that liquid portion is known as plasma. और जितने भी solid है, जितने भी cells है, that cells are known as red blood cells, white blood cells and platelets. देन अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जो सेल रेड कलर के दिखेंगे, दैट रेड कलर सेल्स आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स, एंड दोज सेल वो आर व्हाइट इन कलर, दे आर व्हाइट ब्लड सेल्स. देन नाउ रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं एंड व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट क्यों होते हैं? देयर इज अ डिफरेंस. सो व्हाट वाज द डिफरेंस? सो दैट डिफरेंस इज नथिंग एल्स बट अ कलर. रेड ब्लड सेल हैव अ पिगमेंट in them. Pigment, in a simple way, they have some capacity, they have some color in them, and that color is red color. That's why red blood cells are red in color.
देन रेड ब्लड सेल हैव पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इन दैम। रेड कलर होता है उनके अंदर, और रेड कलर किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन इज अ नेम ऑफ पिगमेंट। देन तो हीमोग्लोबिन वाला पिगमेंट उनके अंदर है, दैट्स वाई उन सेल्स का कलर रेड है, इसीलिए उनको रेड ब्लड सेल्स बोला गया है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए उनके पास कलर नहीं होता, दैट्स वाई दे आर वाइट इन कलर। अब ये काम क्या करते हैं? तो रेड ब्लड सेल क्या काम करते हैं? आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पास ऑन करवाने का काम आरबीसी का है। देन व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स आर आर्मी ऑफ योर बॉडी। आप जब भी बीमार होते हो, आप जब भी आपको सर्दी आती है, बुखार आता है, खांसी आती है, तब आपकी बॉडी की जो फाइटिंग कैपेसिटी होती है, आपकी बॉडी उस डिजीज के सामने जो फाइट करती है ना, उन फाइट में सबसे आगे होते हैं WBC। देन तो WBC क्या हो गए? दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स, कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स आते हैं उनके अगेंस्ट में दे आर फाइटिंग एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज, की डिजीज के सामने से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। देन व्हाट आर प्लेटलेट्स? सो प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कि आपके ब्लड को क्लोट होने से बचाता है। क्लोट होना मतलब आपके ब्लड को जमने से बचा देता है। कभी कभी आपको होता है ना, जब आप गिर जाते हो कहीं पे, तो गिर जाने की वजह से आपको खरोच आ जाती है हाथ या पाँव में कहीं पे, फिर वहाँ से ब्लड निकलता है और फिर वो ब्लड सूख जाता है, तो उसके गड्ढे हो जाते हैं सूखे हुए ब्लड के। देन तो ये क्लोट करवाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करवाते हैं। देन अगर सोच लो कि अगर वो खून के गड्ढे नहीं बना देता, वहाँ पे उसको जमा नहीं देता, तो आपकी बॉडी में से कंटिन्यूअस ब्लड निकलता रहता और सारा ब्लड बॉडी में से निकल जाता, तो आप जिंदा नहीं रह पाते। देन तो बॉडी में से जब ऐसा आपको कुछ लगा करा हो, उस टाइम पे ब्लड को जमा देने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। देन तो ब्लड को क्लोट करवा देने का काम प्लेटलेट्स का है। एंड व्हाट आर प्लाज्मा? ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, कि ब्लड के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन है दैट इज नथिंग एल्स बट प्लाज्मा। ओके, नाउ व्हाट इज हीमोग्लोबिन? ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हीमोग्लोबिन क्या है। दैट इज वन टाइप ऑफ कलर, एंड द टाइप ऑफ सेल विच हैव हीमोग्लोबिन एज अ कलर, they look red in color, so that's why the cell is red blood cell. Now ये इनका फंक्शन क्या होता है? सो हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली ऑल द सेल। की हीमोग्लोबिन काम क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन एक तो पिगमेंट है, रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। देन तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। तो हीमोग्लोबिन भी क्या काम करेगा? सेम काम करेगा, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। देन तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। नाउ इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अब अगर सोच लो रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन हर एक जगह पे पहुंचना क्या हो जाता? डिफिकल्ट हो जाता। देन रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन है, इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर इजीली ऑक्सीजन हर एक जगह पे पहुंच रहा है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपके ब्लड का कलर रेड होता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर्स रेड, की हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका ब्लड रेड कलर का होता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट। ओके, नाउ ब्लड वेसल्स क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें पढ़नी है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सो ब्लड हमने कंप्लीट कर लिया, नाउ वी आर मूविंग ऑन ब्लड वेसल। सो आवर बॉडी कंटेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हमें बहुत सारी जगह पे वेन्स दिखती है, आर्टरीज दिखती है। देन और हिंदी या गुजराती में बात कर लो तो बोलते हैं कि हाथ या पाँव में, पूरे शरीर में नस दिखती है हमारी। देन तो दैट इज नथिंग एल्स बट अ ब्लड वेसल्स, कि आपको जो दिखती है ना ग्रीन कलर की आपकी पूरी बॉडी में, सो दैट इज नथिंग एल्स बट अ ब्लड वेसल्स, जिनके अंदर खून होता है। इंजेक्शंस लगवाने जाते हो ना, तो डॉक्टर इंजेक्शंस भी वेन में लगाते हैं। देन नर्स ढूंढते हैं, डॉक्टर्स भी,
देन तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं. सो दैट इज नथिंग एल्स बट अ ब्लड वेसल, जिनके अंदर से ब्लड पास होता है. जैसे घर में पानी की पाइपलाइन होती है ना, कि पाइपलाइन के अंदर से पानी आता है. रोड के नीचे भी पाइपलाइन होती है कि वहाँ से पाइपलाइन से पानी घर तक आता है. एट अ सेम वे our body have so many pipelines जिनके अंदर से blood pass on होता है, and that pipeline is nothing else but a blood vessel. okay? और इन blood vessels की हेल्प से हमारी पूरी बॉडी के अंदर blood क्या होता है, शिफ्ट होता है, पूरी बॉडी में blood ट्रांसपोर्ट होता है. now our body contains 3 types of blood vessel based on the function that they perform. कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी blood vessels होती है. सो होती बहुत सारी है, बट उनके 3 टाइप होते हैं, 3 अलग अलग तरीके की होगी. सो फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकेंड वन इज वेन एंड थर्ड वन इज कैपिलरी. कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होंगी. एन नंबर्स में है, बहुत सारी है, आप गिन नहीं पाओगे उतनी सारी वेसल्स है. बट उन सारी वेसल्स को अगर आप क्लासीफाई करना चाहो, यू कैन क्लासीफाई इन 3 पार्ट, दैट इज आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज. नाउ we have to learn one by one what is artery, what is vein and what is capillaries. So we are starting with arteries. Now these blood vessels carry blood from the heart that contains oxygen into different part of the body. Artery have thick walls as the blood pressure is quite high in the blood vessel. They are narrow so that the blood can flow quickly throughout them. They do not contain valve as the blood in arteries always flow in the right direction due to the pumping of the हार्ट. अब आर्टरीज होती क्या है? सो आर्टरी काम क्या करती है सबसे पहले? सो आर्टरी का मेन वर्क दैट इज टू पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. कि आपके हार्ट ने जितना भी ऑक्सीजन बनाया है, ऑक्सीजन वाला ब्लड बनाया है, उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को आपकी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे आर्टरीज. देन तो काम पता चल गया. अब आर्टरी दिखती कैसी है, हाउ इट लुक लाइक्स. सो आर्टरी की जो अपीयरेंस है, आर्टरी की जो वॉल होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है तो उनकी भी वॉल होगी, उनकी भी बाउंड्रीज होगी. तो उनकी जो बाउंड्री है वो क्या होगी, थिक होगी, बहुत झाड़ी बाउंड्री होगी आर्टरी की. देन अब ये मोटी बाउंड्री क्यों होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर. क्योंकि जब हार्ट में से ब्लड प्रेशर होके आता है, ब्लड एकदम प्रेशर से फ्लो होता है, तो उस प्रेशर को सस्टेन कर पानी चाहिए आपकी वेन्स, आपकी आर्टरीज. दैट्स वाई आर्टरीज की वॉल क्या होती है, थिक होती है. कि जब हार्ट में से ब्लड एकदम हाई फ्लो में आए तो वो आर्टरीज टूट ना जाए, इसीलिए उनकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है. अब आर्टरीज जो है वो बहुत ही नैरो होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है. घर पे जो पाइपलाइंस होती है ना, उतनी बड़ी बड़ी नहीं होती है, वो बहुत छोटी छोटी होती है. अगर आप घर पे जो सुई होती है ना, सुई से थोड़ी सी बड़ी, इतनी. सेव कितनी आती है, आप लोग खाते हो ना, ममरा के अंदर खाते हो, आलू सेव वगैरह खाते हो. एक्चुअली नहीं खाना चाहिए, बट मैं आपको जस्ट साइज का आइडिया दे रही हूँ कि वो कितनी होती है. हाँ, उतनी साइज की ये सारी चीजें होती है. देन तो दे आर दैट मच नैरो, कि ये इतनी नैरो होती है. और नैरो होने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर से ब्लड इजीली पास ऑन हो जाता है. अब इनके अंदर कोई भी वाल्व नहीं होते. वाल्व मतलब आपके घर पे कैसे होते, मोटर, पानी की मोटर होती है ना, वहाँ पे वाल्व लगे होते हैं ऊपर पानी चढ़ाने के लिए. या तो साइड में वाल्व खोलोगे तो पानी आएगा, वाल्व बंद कर दोगे तो पानी नहीं आएगा. तो एट द सेम वे आर्टरीज के अंदर ऐसे कोई वाल्व नहीं होते, क्योंकि आर्टरी के अंदर तो ब्लड कहाँ से आना है, सीधा हार्ट में से ब्लड आना है, इसीलिए यहाँ पे कोई वाल्व नहीं होते. देन क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में ही जाने वाला है, हार्ट से अगर कोई चीज आई है that is going in a right direction, so there is no need of valve. Now how many types of arteries are there? So there are pulmonary arteries, so that we have to learn pulmonary artery. So the pulmonary artery is a special blood vessel that connects the heart to the lungs. It takes blood that contains less oxygen, or else you can say deoxygenated blood. कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, मैंने आर्टरी आपको ऑलरेडी समझा दी, बट पल्मोनरी आर्टरी में इतना क्या स्पेशल है जो आपको अलग से समझनी पड़ी. देन सो पल्मोनरी आर्टरी हैव सम स्पेशल फंक्शंस, कि ये क्या काम करते हैं. ये भी सेम ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम ही करते हैं, बट कहाँ से कहाँ ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, आपके हार्ट से आपके लंग्स तक को ब्लड अगर ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो वो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो सकता है.
बाकी जितनी भी आर्टरीज है वो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, बट वो आर्टरीज कहाँ पे ब्लड को भेज रही है? आपके हार्ट से पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजने का काम नॉर्मल आर्टरीज करती है। एंड पल्मोनरी आर्टरीज क्या काम करेगी? हार्ट में से लंग्स के अंदर आपको अगर ब्लड पहुंचाना है, दैट इज ओनली डन बाय पल्मोनरी आर्टरीज। अब पल्मोनरी आर्टरीज किसको ट्रांसपोर्ट करेगी? तो हार्ट में से जितना भी ब्लड निकला है जिनके अंदर कम ऑक्सीजन है, देन कि जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, कम ऑक्सीजन है उस ब्लड के अंदर, उस ब्लड को जो लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको वो लंग्स के अंदर पहुँचाएगा। लंग्स वापस क्या करेगा? उसके अंदर ऑक्सीजन को रिफिल करेगा और फिर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस हार्ट के अंदर आ जाएगा और फिर हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में नॉर्मल वाली आर्टरी के थ्रू पहुंच जाएगा। Then now hence it is unlike all the arteries that carries oxygenated rich blood. Then बाकी सारी आर्टरीज क्या काम करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाती है। Then जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है वो पहुंचाने का काम करती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, नॉर्मल वाली आर्टरी। बट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है, जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, उस ब्लड को आपके हार्ट से आपके लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। Then after completing arteries, we are moving on veins. So what are veins? So these are blood vessels carry blood that is rich in carbon dioxide from the body organs through the heart. Then arteries से बिल्कुल उल्टा वर्क होता है veins का। आर्टरी ने क्या किया? ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया। अब हर एक बॉडी पार्ट ने अपने अकॉर्डिंग वर्क किया, अपने अकॉर्डिंग काम किया, तो वो ब्लड भी गंदा हो गया होगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड आया था बट काम करते करते उनके अंदर कचरा आ गया और वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो गया। तो अब वो ब्लड क्या हो गया? अनप्योर हो गया। तो अनप्योर वाले ब्लड को आपकी बॉडी से आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालोगे भी कहाँ से? निकालना मतलब बाहर नहीं निकाल देना है, हमें उसको प्योर करना है। वो जो अनप्योर ब्लड है उनको प्योर करना है। तो ये प्योरिफिकेशन कहाँ पे होगा? हार्ट तक पहुंचाना पड़ेगा, राइट? इस ब्लड को हमें हार्ट और लंग्स तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इस ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक पहुंचाना होगा हमें। तो वो हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगी? वेन करेगी। कि भाई वेन क्या करेगी? पूरी बॉडी में से हर एक जगह में से डीऑक्सीजनेट ब्लड को इकट्ठा करेगी और वो पूरा अनप्योर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक पहुंचाएगी। फिर हार्ट से वो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा। कौन सी आर्टरी के थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और लंग्स क्या करेगा? उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना के वापस हार्ट में भेज देगा। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस बॉडी में जाएगा। किसकी हेल्प से? आर्टरी की हेल्प से। वापस काम होगा, वापस ब्लड गंदा होगा, वापस वो गंदा हुआ ब्लड वापस हार्ट में आएगा। किसकी हेल्प से? वेन की हेल्प से। तो ये साइकिल क्या रहेगी? कंटिन्यूअस चालू रहेगी। नाउ वेन्स डू नॉट हैव थिक वॉल्स एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट लो इन देम। कि वेन्स की जो भी वॉल होती है ना, उनकी दीवारें बहुत मोटी नहीं होती क्योंकि इनके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। नाउ दे आर स्लाइटली वाइडर देन आर्टरीज। और मैंने आपको पहले बोला था आर्टरीज क्या होती है? बहुत ही पतली होती है, बहुत ही नैरो होती है। देन नैरो पतली मतलब उनकी वॉल तो जाडी ही होगी बट वो पूरी साइज में गिनो तो वो पतली होती है। बट वेन क्या होती है? उनसे थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी जाडी होती है। दे कंटेन वाल्व दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। और उनके अंदर वाल्व होते हैं। जितनी भी वेन्स होती है वेन के अंदर वाल्व होते हैं और ये वाल्व क्या काम करेंगे? ब्लड को अलग डायरेक्शन में जाने से रोकने का काम करेंगे। ओके, नाउ पल्मोनरी आर्टरी तो पढ़ी थी। नाउ वी हैव टू लर्न पल्मोनरी वेन। Again, this one is a special type of vein. That's why you have to learn it from a different way. Now, the pulmonary vein is a special blood vessel that connects lungs and the heart. Pulmonary artery ने क्या काम किया था? हार्ट और लंग को कनेक्ट करने का काम किया था। मतलब हार्ट में से ब्लड को लंग्स में लाने का काम किया था आर्टरी ने। पल्मोनरी वेन क्या काम करेगी? सेम, इन दोनों को कनेक्ट ही कर रही है बट डायरेक्शन चेंज हो गई। लंग्स से हार्ट में जाने का काम वेन का। गेटिंग माई पॉइंट? हार्ट टू लंग पल्मोनरी आर्टरी और लंग टू हार्ट पल्मोनरी वेन।
अब पल्मोनरी वेन क्या काम करेगी कि लंग ने आपका जितना भी ऑक्सीजन था वो प्योरीफाई वाला ब्लड बनाया है, अनप्योर ब्लड को प्योर किया है जो ऑक्सीजन डाल के, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट पे पहुंचाने का काम कौन करेगी? वेन करेगी। ओके, तो दैट इज अबाउट पल्मोनरी वेन। नाउ दिस वन इज अ डिफरेंस अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स, कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सेम कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरिजन के लिए। ओके, you can read them or else can take a screenshot of that. Thank you everyone. Have a good day.